Hello everyone. Today we will discuss the remaining part of Equisetum, that is the reproduction in Equisetum and life cycle of Equisetum. So let's start. So reproduction, as we know, it is the process by which a species is continued. So reproduction Equisetum में होता है both vegetative as well as by the production of spores. So reproduction इसमें होता है Equisetum vegetatively and by means of spores. So firstly vegetative reproduction. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मेनली पार्टिसिपेट करते हैं ये अंडरग्राउंड पार्ट्स जिसको कहा जाता है ट्यूबर्स, और ये बनते हैं राइजोम में. दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस पेरेंट बॉडी और ये जर्मिनेट करते हैं इंडिपेंडेंटली टू फॉर्म न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं. सो जो सबटेरेनियन राइजोम होते हैं मींस अंडरग्राउंड राइजोम है कुछ स्पीशीज़ के, फॉर एग्जांपल इक्विसिटम telmateia, इक्विसिटम arvense, they give rise to these tubers which on separation from the parent plant, जब ये parent plant से separate होते हैं, germinate करते हैं to produce new sporophytic plant when the conditions are favorable for germination. So this photograph shows these underground tubers, और ये जो tubers हैं Equisetum के ये separate होते हैं parent body से. They fall on suitable substratum और वहाँ पे ये germinate करते हैं when conditions are favorable. जब conditions favorable होंगी तब ये germinate करेंगे and they will give rise to the new sporophytic plant body. और जो ये tuber development होती है इनकी, it is due to irregular growth of birds. कुछ birds present होते हैं rhizome में, उनकी irregular growth से ये tubers बनते हैं at each node of the rhizome. जो nodes हैं वहाँ पे ही बनते हैं, internodal position पे ही present नहीं होते. So this is all about the vegetative reproduction in case of Equisetum. Next comes reproduction by means of spores. So Equisetum है, it is a Homosporous fern. एक ही तरह के spore produce होते हैं and they are produced inside the sporangia. और जो sporangia है they are borne on some stalk like structure जिसका आता है sporangiophores. और ये sporangiophore aggregate करके एक structure बनाते हैं, compact structure जिसको कहा जाता है strobilus, which is terminal in position, mostly terminal position पे present होता है, और cone भी कहा जाता है इसे, और sporangioferous spike भी इसे कहा जाता है. So this is the photograph which shows this terminal strobilus. This is a compact structure which is found by the aggregation of sporangiophores. So these are sporangiophores, इनकी aggregation से बनता है ये strobilus, और sporangiophores bear करते हैं sporangias, और sporangia के अंदर present होते हैं spores. So this is the pelted disc and this is the stalk of the sporangiophore, और इसमें present होते हैं sporangia, sporangia के अंदर present होते हैं spores. Next comes strobilus. Strobilus एक singular word है, strobili एक plural word है. अगर हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं, it grows on aerial shoot. एरियल जो शूट है उस पर ग्रो करता है और मोस्टली टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है. कुछ स्पीशीज़ में ये क्लोरोफिलस ब्रांचेस पे प्रेजेंट होता है एंड इन सम स्पीशीज इट इज प्रेजेंट ऑन द नॉन क्लोरोफिलस ब्रांच. सो इक्विसिटम आर्वेंस में ये नॉन क्लोरोफिलस ब्रांच के टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, बट दिस फोटोग्राफ शोज द क्लोरोफिलस ब्रांच और उसके टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट है ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कहते हैं स्ट्रोबिलस. और ये बना होता है ऑफ एन एक्सिस, एक एक्सिस प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस एक्सिस, और वर्ल्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर, इसके चारों तरफ लगे होते हैं स्पोरेंजियोफोर्स विच आर कम्पैक्टली अरेंज्ड. एंड ईच स्पोरेंजियोफोर, एक सिंगल जो स्पोरेंजियोफोर है, इट इज़ अ स्टॉक्ड स्ट्रक्चर, इसमें स्टॉक प्रेजेंट होता है और ये बियर करता है एक हेक्सागोनल पेल्टेट डिस्क एट इट्स डिस्टल एंड दैट वी कैन सी इन दिस डायग्राम. सो दिस इज द डिस्टल एंड और ये है पेल्टेड डिस्क एंड दिस इज द स्टॉक जो स्पोरेंजियोफोर में प्रेजेंट होता है. ये स्टॉक अटैच करता है स्पोरेंजियोफोर को टू द कोन एक्सिस और स्ट्रोबिलस एक्सिस, और ये इसमें प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया. ऑन द अंडर सरफेस ऑफ स्पोरेंजियोफोर डिस्क 5 to 10 elongate cylindrical hanging sporangia are borne. So इस तरह के हम देख सकते हैं जो ये hanging structures हैं, these are 5 to 10 in number and these are commonly known as sporangia. And they are born near to the periphery in a ring. So this is the sporangiophore और ये है strobilus. इसमें हम देख सकते हैं ये hanging structure जो हैं, these are the sporangias. The flattened tips of the sporangiophore fits closely together. जो flat tip हैं इसके sporangiophore के, ये
फिट होते हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग स्पोरेंजिया, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पोरेंजिया के लिए। एंड एक्सिस बियर अ रिंग लाइक आउटग्रोथ, जो एक्सिस है इसमें एक रिंग लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, विच इज़ नॉन एज एनुलस, विच इज़ प्रेजेंट इमीडिएटली बिलो द वर्ल्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर, जो वर्ल्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। एंड इट प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, और इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस में। और ये जो एनुलस है, इट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एज रूडिमेंट्री लीफ शीथ बाय सम बॉटनिस्ट, इसको रूडिमेंट्री लीफ शीथ ही मानते हैं कुछ एक बॉटनिस्ट, वेयर सम अदर कंसिडर इट एज द स्पोरेंजियोफोर इन नेचर, एज ओकेजनली इट बियर्स स्मॉल स्पोरेंजिया। सो कुछ एक इसको लीफ शीथ मानते हैं और कुछ एक इसको मानते हैं स्पोरेंजियोफोर, क्योंकि ये बियर करता है स्मॉल साइज स्पोरेंजियाज। Next comes structure of mature sporangium. So the mature sporangium is an elongated sac-like structure. एक sac की तरह structure होता है ये, attached to the inner side of peltate disc, की हमने पिछली स्लाइड में देखा, जो peltate disc है उसके अंडर सरफेस पे प्रेजेंट होता है ये of the sporangiophore. So this is the peltate disc और इसके अंडर सरफेस में प्रेजेंट हैं ये sporangias. So this is the photograph under microscope, और ये सेंट्रल पोर्शन है strobilus axis. So it is covered by 2 layers of cells to form jacket. 2 लेयर सेल्स की होती हैं जो जैकेट बनाती है, बाहर से कवरिंग बनाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग. सो दिस इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग जो स्पोरेंजिया है, इसके बाहर की 2 लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है टू फॉर्म जैकेट. द इनर लेयर इज जनरली compressed and the cells of outer layer have helical थिकनिंग्स. जो इनर लेयर है वो स्प्रेस्ड होती है और जो बाहर की लेयर है स्पोरेंजिया की, इसमें थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है विच आर इन्वॉल्व्ड इन स्पोरेंजियल डेहिसेंस. मीन्स ये शो करती हैं हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स जिससे स्पोरेंजिया की डेहिसेंस में हेल्प मिलती है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरेंजियम. नेक्स्ट कम्स डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम, हाउ स्पोरेंजियम रिलीजेस द स्पोर्स. सो इसमें जो स्पोरेंजियम की आउटर वॉल है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट हैज़ सम थिकनिंग्स, और ये थिकनिंग्स शो करती हैं हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स. दीज हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ वर्टिकल स्लिट और वर्टिकल क्रिवाइस जहाँ से ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं. सो एट मैच्योरिटी द स्ट्रोबुलर एक्सिस इलोंगेट्स. जो स्ट्रोबुलर एक्सिस है वो इलोंगेट होती है, जिसके रिजल्ट से जो स्पोरेंजियोफोर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एंड दे गेट एक्सपोज्ड. Then the sporangium splits open by longitudinal line. एक longitudinal line के थ्रू ये split होता है sporangium due to the differential hygroscopic response of wall cells. जो hygroscopic movement शो करते हैं ये wall cells, उसकी वजह से एक longitudinal line appear होती है जिसके थ्रू sporangium split होता है. Next comes the spore. After dehiscence of sporangium, spores are released. स्पोर रिलीज हो जाते हैं और जो इक्विसेटम के स्पोर्स हैं दे आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, दे आर स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर. सो द स्पोर्स आर स्फेरिकल एंड फिल्ड विद डेंसली पैक्ड क्लोरोप्लास्ट, सो दे आर ग्रीन इन कलर दैट वी कैन सी इन दिस फोटोग्राफ. द स्पोर वॉल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स. इसमें जो स्पोर वॉल है उसमें 4 लेयर्स होती हैं. द इनर मोस्ट लेयर इज डेलिकेट इन टाइन एंड इट इज़ फॉलोड बाय थिक एक्साइन. Then the middle cuticular layer and the outermost layer is known as epispore or perispore. इसमें जो intine है जिसको एंडोस्पोर कहा जाता है और एक्साइन also known as exospore are the true walls of spore. They are the true walls of spore. जो outer layers हैं तो outer 2 layers, there is cuticular layer and epispore. They are derived due to disintegration or degeneration of non-functional spore mother cells and tapetal cell. ये जो बाहर की 2 layers हैं ये बनती हैं disintegration और degradation of non-functional spore mother cells और tapetal cells की वजह से. At maturity जो epispore है that is the outermost layer, ये split हो जाती है to produce 4 ribbon-like bands or strips with flat spoon-like tips. So in this photograph we can see here जो ये वाली जो
स्पाइरल स्ट्रक्चर हैं, 4 स्पाइरल स्ट्रक्चर हैं। ये बनते हैं ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ दिस एपीस्पोर। जो एपीस्पोर है ये बनाती है ये 4 स्ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि जिनके टिप्स होते हैं स्पून शेप्ड। These bands are free from the spore wall except for a common point of attachment and remain tightly coiled around the spore wall until sporangium is fully matured. So ये जो स्ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये स्पोर के चारों तरफ कॉइल्ड रहते हैं जब तक कि स्पोरेंजिया फुली मेच्योर ना हो जाए, एंड दे आर फ्री फ्रॉम द स्पोर एक्सेप्ट एक कॉमन पॉइंट जहाँ पे ये चारों अटैच होते हैं, अदरवाइज दे आर फ्री और स्पोर के चारों तरफ कॉइल्ड रहते हैं until the maturity of sporangium. So these strap shaped structure are commonly known as elaters और इनका जो मेन फंक्शन होता है they helps in dehiscence of sporangium and dispersal of spores, and these elaters are hygroscopic in nature, means moisture के जब कांटेक्ट में आते हैं so they show hygroscopic movements. The spore remains moist एट अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जब स्पोर यंग होता है उस स्टेजेस में जो स्पोर होता है दैट इज़ मॉइस्ट, और जो इलेटर्स हैं दस दे आर स्पायरली कॉइल्ड अराउंड द स्पोर, और जो इलेटर्स हैं वो स्पायरली कॉइल्ड रहते हैं स्पोर के चारों तरफ, दैट वी कैन सी इन दिस फोटोग्राफ, एनिमेटेड फोटोग्राफ। सो स्पायरली कॉइल्ड रहता है स्पोर के चारों तरफ ये इलेटर। जब स्पोर ड्राई होते हैं the spore dry out at maturity and consequently the elater becomes uncoiled. जैसे ही स्पोर ड्राई होता है तो ये इलेटर्स अनकॉइल हो जाते हैं, and the uncoiled elaters becomes entangled with elaters of other spores. So बहुत सारे स्पोर्स के जो इलेटर्स हैं उनके साथ ये एंटेंगल हो जाता है, मीन्स मिक्स हो जाता है। Through these actions the elater helps in the dehiscence process, dehiscence में हेल्प करता है स्पोरेंजियम की, एंड also the dispersal of spores, और स्पोर के डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है इन लार्ज ग्रुप्स फ्रॉम स्पोरेंजियम। और जो डिस्पर्सल होता है स्पोर्स का वो ग्रुप्स में होता है क्योंकि जो इलेटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ एंटेंगल हो जाते हैं। सो दीज स्पोर्स आर dispersed in groups. So the elaters of Equisetum are different from those of Bryophytes. जो elaters हैं Equisetum के वो different हैं Bryophytes से। वो कैसे हैं that we'll see in this flow chart. Firstly, elaters of Bryophyte. So जो elaters हैं Bryophyte के वो बनते हैं from the sterile mother cell. जो sterile spore mother cell है उसकी differentiation से बनते हैं elaters of Bryophyte. So they are diploid, ये diploid होते हैं and they are sterile, इनकी shape होती है spindle and have spiral thicknings, और इनमें spiral thickening present होती है। While in case of elater of Equisetum, जो Equisetum के elaters हैं they are produced by splitting of epispore, जो कि outermost spore की wall है उसके breakdown से बनता है ये, and these are haploid, ये haploid होते हैं, ribbon like होते हैं with spoon like tip, जो इनकी टिप है वो स्पून लाइक होती है, एंड दे आर विदाउट स्पाइरल थिकनिंग, इसमें कोई भी स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट नहीं होती। सो दीज आर सम डिफरेंसेस। नेक्स्ट कम्स स्पोर जर्मिनेशन एंड गैमेटोफाइट जनरेशन। एज वी नो इक्विसेटम इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस करता है, और जो स्पोर्स होते हैं दे जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, और जर्मिनेशन इमीडिएटली होती है जैसे ही सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है। इफ़ दिस स्पोर फॉल्स ऑन सूटेबल सबस्ट्रेटम ये जर्मिनेट करता है इमीडिएटली। अगर इसको सूटेबल सबस्ट्रेटम नहीं मिलता है सो इट स्टार्ट लूजिंग इट्स वायबिलिटी। फर्स्टली जो फर्स्ट डिवीजन होता है इस स्पोर में दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉलर सेल, और जो स्मॉलर सेल है दैट विल गिव राइज टू राइजोइड्स, मीन्स लोअर पोर्शन बनाएगा, एंड द लार्जर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म द प्रोथैलस, और जो लार्ज सेल है वो डिवाइड करेगा टू फॉर्म प्रोथैलस। इनिशियली जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं इसके दे आर मेरिस्टेमेटिक, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं एंड दे फॉर्म सर्कुलर प्रोथैलस, और एक सर्कुलर प्रोथैलस बनता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ दिस पेरिफेरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और इक्विसेटम में जो प्रोथैलाई बनते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के प्रोथैलाई बनते हैं। वन आर द लार्ज साइज विच कंटेन बोथ एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया, मीन्स मोनोशियस टाइप, एक ही प्रोथैलस में दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे। दैन द स्मॉलर वन विच बियर्स ओनली एंथ्रेडियम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड थर्ड वन विच बियर ओनली द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच आर आर्किगोनिया। सो 3 तरह के प्रोथैलस बनते हैं। स्मॉलर मेल प्रोथैलस जिसमें सिर्फ एंथ्रेडिया होंगे, देन लार्ज डीप ग्रीन प्रोथैलस एंड थिक
एंड मैसिव प्रोथैलस विद बोथ सेक्स ऑर्गन। और जो लार्ज डीप ग्रीन प्रोथैलस होता है इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, और थिक और जो मैसिव प्रोथैलस है दैट बियर्स बोथ द सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज एंथ्रेडिया एज वेल एज आर्किगोनिया। Next comes structure of mature prothallus. So it consists of two regions. One is upper photosynthetic region. अपर जो photosynthetic region है जो बना होता है नंबर ऑफ वर्टिकल इरेक्ट क्लोरोफिलस लोब से, और ये ब्रॉडर होता है बेस में। और इसमें जो एंथ्रेडिया है दे डेवलप्स ऑन द मार्जिन्स और एपेक्स ऑफ इरेक्ट लोब्स। जो एंथ्रेडिया है वो मार्जिन और इरेक्ट लोब्स के एपेक्स में बनते हैं, वेयर एज आर्किगोनिया फॉर्म्ड इन द मेरिस्टेमेटिक रिम ऑफ बेसल कुशन। जो आर्किगोनिया है वो बेसल पोर्शन में बनते हैं, दैट वी कैन सी इन दिस डायग्राम। सो जो एपेक्स का रीजन है वर्टिकल इरेक्ट जो क्लोरोफिलस लोब्स हैं वहाँ पे एंथ्रेडिया होते हैं, और जो आर्किगोनिया है दे आर प्रेजेंट एट द बेसल कुशन। सो बेसल कुशन में आर्किगोनिया दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होता है। देन सेकेंड पार्ट इज बेसल कुशन like region which is thick and massive. So basal portion is known as this basal cushion, and the cells are parenchymatous with or without chloroplast and intercellular spaces. So जो basal portion है ये parenchymatous cell से बना होता है। meristematic tissue is situated at the basal cushion. meristematic tissue भी basal cushion में present होता है in the form of rim, and it bears number of unicellular unbranched smooth walled rhizoids on the under surface. So under surface में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये यूनिसेलर unbranched smooth walled rhizoids present होते हैं, which helps in absorption of water and nutrients from the soil surface and also helps in encouraging the prothallus to the substratum. Next comes sex organs in case of Equisetum. As we know that the prothallus bear both the sex organs, so it is homothallic. It means it bear both the male and female sex organs on the same thallus. So the gametophyte are basically bisexual. It means homothallic, that is they bear both male, that is anthradia, and female sex organ archegonia on the same prothalli. Firstly, we will discuss about the anthridium, which is the male reproductive structure in Equisetum. So anthridia are of two types in case of Equisetum. One are projecting type. Projecting type anthridia ऐसे anthridia होते हैं जो सरफेस जो गैमेटोफाइटिक सरफेस से बाहर निकलते हैं। एंथ्रेडियम प्रोट्यूड्स अ लिटिल अबव द सरफेस ऑफ गैमेटोफाइट, प्रोट्यूड आउट होते हैं गैमेटोफाइट के सरफेस से बाहर। वाइल जो एम्बेडेड टाइप हैं दे रिमेन संक इन द गैमेटोफाइट, वो एम्बेडेड रहते हैं गैमेटोफाइट में। सो दे आर ऑफ टू टाइप्स। Then anthridia first appear on the lobes of the gametophyte that we can see in this diagram. So anthridia जो apex है, apical lobes है, वहाँ पे appear होते हैं। And the periclinal division of superficial anthridial initial give rise to jacket initial. So firstly यहाँ पे initially जब डेवलपमेंट स्टेज के इनिशियल स्टेज पे होता है ये, सो इसमें एक सुपरफिशियल एंथ्रेडियल इनिशियल सेल होता है जो डिवाइड करता है टू गिव जैकेट इनिशियल एंड एंड्रोगोनियल सेल, सो दैट गिव राइज टू jacket initial and androgonial cell. So this jacket initial divides anticlinally, means it will increase number of cells to form single layer jacket. So इसके anticlinal division से जो jacket initial है इसके anticlinal division से jacket layer बनती है, जो बनती है anticlinal division से, जिससे number of cells increase होते हैं, and this is single layered. Then the repeated division of androgonial cell, जो androgonial cell है उसके repeated division से बहुत सारे numerous cells are formed which on metamorphosis, जो metamorphose हो जाते हैं to produce spermatids or antherozoids which are male gametes. So these are sperm mother cells, ये divide करते हैं, re-divide करते हैं to form numerous spermatids or antherozoids. The antherozoids escape through a pore created by the separation of apical jacket cell. So इस apical जो jacket cell है यहाँ पे एक पोर क्रिएट होता है, और ये जो एंथीरोजॉइड्स हैं या स्पर्मेटिड्स हैं ये यहाँ से बाहर निकलते हैं। द एपिकल पार्ट ऑफ एंथीरोजॉइड इज स्पायरली कॉइल्ड, दैट वी कैन सी इन दिस डायग्राम। ये स्पायरली कॉइल होता है एपिकल रीजन एंथीरोजॉइड का, वेयर एज द लोअर पार्ट इज टू सम एक्सटेंट इज एक्सपेंडेड, और जो लोअर पार्ट है वो एक्सपेंडेड होता है।
and each antherozoid has about 120 flagella attached to the anterior end. So जो इसका इंटीरियर हैंड है यहाँ पे लगभग 120 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और ये फ्रीली स्विम करता है इन द फिल्म ऑफ वाटर. नेक्स्ट कम आर्किगोनियम. इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन केस ऑफ एक्विसिटम. तो कोई भी सुपरफिशियल सेल मार्जिनल मेरिस्टेम का बिहेव करता है एज आर्किगोनियल इनिशियल. इट बिहेव्स एज आर्किगोनियल इनिशियल और ये डिवाइड होता है बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म वन प्राइमरी कवर सेल. एक बनता है प्राइमरी कवर सेल एंड इनर सेंट्रल सेल. सो दो सेल्स बनते हैं इसके डिवीजन से. वन इज़ प्राइमरी कवर सेल एंड अदर इज़ इनर सेंट्रल सेल. जो कवर सेल है दैट अगेन डिवाइड्स बाय टू वर्टिकल डिविजन्स. दो वर्टिकल डिविजन्स होंगे एट राइट एंगल टू ईच अदर. देन सपोज दिस इज द फर्स्ट डिवीजन, सेकंड वन इज दिस वन. सो दो डिविजन्स होंगे राइट एंगल टू ईच अदर एंड फॉर्म्स द नेक. और नेक बनती है आर्किगोनियम की. देन द सेंट्रल सेल, जो सेंट्रल सेल है वो डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली टू फॉर्म अ प्राइमरी नेक कैनाल सेल. एक प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनता है और दूसरा वेंटर सेल बनता है by the division of central cell. Then this जो two neck canal cells हैं they are produced from primary neck canal cell. जो primary neck canal cell है ये divide करेगा जिससे दो neck canal cells बनेंगे. Then जो venter cell है it will divide by transverse division. ये transversely divide करेगा to form a venter canal cell और an egg. जब venter cell divide करता है तो ये बनाता है ventral canal cell and an egg. So this is the egg cell, this is the ventral canal cell, and these are the neck canal cells, and this is the neck. So this is the archegonium of Equisetum. At maturity क्या क्या चीज़ें होती है इसमें? An archegonium has a projecting neck. एक projecting neck है. So this portion is neck, comprising of 3 to 4 tiers of neck cells. 3 से 4 टायर्स होते हैं इसमें नेक सेल्स के, अरेंज इन 4 रोज, और 4 रोज में ये अरेंज होते हैं. देन कम्स 2 नेक कैनाल सेल्स. 2 नेक कैनाल सेल्स होते हैं ऑफ अनइक्वल साइज, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. वन इज़ ऑफ लार्जर साइज एंड अदर इज़ ऑफ स्मॉलर साइज. अनइक्वल साइज के होते हैं. देन कम्स अ वेंट्रल कैनाल सेल. एक वेंट्रल कैनाल सेल होता है, दिस वन इज द वेंट्रल कैनाल सेल, एंड एन एग एट द बेस of embedded venter. So this lower portion is venter और यहाँ पे present होता है एक egg cell. So this is the mature archegonium of Equisetum. So the archegonia are confined to cushion region. जो basal region है वहाँ पे ये confined होते हैं in between the aerial lobes. Aerial lobes जैसा कि हमने पीछे वाली slide में देखा था, in the prothallus of Equisetum archegonia कहाँ present होते हैं. So this is all about the archegonium of Equisetum. Next comes the important event, fertilization. It involves the fusion of male and female gametes. So water is essential for fertilization. ये बहुत ही important factor है, water की requirement रहती है fertilization के लिए. So water is essential for fertilization. और जो gametophyte है that must be covered with the thin layer of water in which the motile antherozoids swim to archegonia. So जो गैमेटोफाइट है वो कवर होना चाहिए वाटर की थिन लेयर से, ताकि जो एंथेरोजॉइड्स हैं वो मूव करके स्विम करके आर्किगोनिया के पास पहुँचे. सो द नेक कैनाल सेल्स, जो नेक कैनाल सेल्स हैं एंड वेंटर कैनाल सेल्स ऑफ आर्किगोनिया डिसइंटीग्रेट, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं टू फॉर्म अ पैसेज, जिससे कि एक पैसेज बनता है, पास बनता है फॉर द एंट्री ऑफ एंथेरोजॉइड टू द एग. सो एंथेरोजॉइड एग तक पहुँचते हैं. सो जो नेक कैनाल सेल्स हैं और वेंटर कैनाल सेल्स हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, मींस डिज़ोल्व हो जाएंगे, जिससे कि एक पास बनेगा और एंट्री बनेगी टूवर्ड्स द एग सेल. सो मैनी एंथेरोजॉइड पास थ्रू द कैनाल ऑफ आर्किगोनियम बट ओनली वन ऑफ देम इज एबल टू फ्यूज़ विद एग. सो बहुत सारे एंथेरोजॉइड एंटर करते हैं यहाँ से, बट सिर्फ एक ही एंथेरोजॉइड फ्यूज़ करता है एग के साथ टू फॉर्म डिप्लॉइड zygote. So the diploid zygote is formed as a result of fusion of antherozoid and egg. So this is the animated photograph that shows this is the egg in the archegonium and these are the sperms or antherozoid. ये बहुत सारे antherozoid archegonia तक जाते हैं.
So only one antherozoid is able to fuse with the egg to form diploid zygote, and this process is known as fertilization. But water is most important factor for the process of fertilization in case of Equisetum. Generally, more than one archegonia are fertilized in prothallus. So generally एक से ज़्यादा archegonia present होते हैं prothallus में Equisetum के, और simultaneously they are fertilized, और एक से ज़्यादा आर्किगोनिया फर्टिलाइज होते हैं इन अ सिंगल प्रोथैलस ऑफ इक्विसेटम. नेक्स्ट कम्स द एम्ब्रियो, द न्यू स्पोरोफाइट. सो एम्ब्रियो इज़ द मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन. जो एम्ब्रियो है इट इज़ द मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन. जाइगोट की डेवलपमेंट से बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप होगा टू फॉर्म दिस मैच्योर स्पोरोफाइट. सो हाउ इट इज़ फॉर्म्ड? फर्स्टली द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ट्रांसवर्स. पहला जो डिवीजन है वो ट्रांसवर्स होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज जाइगोट और पहला डिवीजन ट्रांसवर्स है, दिस इज ट्रांसवर्स डिवीजन. इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अपर एपीबेसल सेल, ऊपर वाला एपीबेसल सेल बनेगा, और लोअर हाइपोबेसल सेल आर फॉर्म्ड. सो दो सेल्स बनेंगे इसमें. सो दिस इज द डायग्राम विच शोज दिस इज द जाइगोट. ये फर्स्टली डिवाइड करेगा ट्रांसवर्स डिवीजन से टू फॉर्म टू सेल, अपर एपीबेसल सेल एंड लोअर हाइपोबेसल सेल. Then embryo development is exoscopic. So this is very important. Exoscopic का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट का जो एपिकल सेल है डेवलपिंग जाइगोट का या एम्ब्रियो का, दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नेक ऑफ आर्किगोनिया. इसकी जो डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की, दैट इज़ टूवर्ड्स द नेक ऑफ आर्किगोनिया, जबकि जो एंडोस्कोपिक है दैट इज़ टूवर्ड द बेस ऑफ आर्किगोनिया, जो हमने सेलेजिनेला के केस में पढ़ा था. सो दिस इज एक्सोस्कोपिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन केस ऑफ इक्विसेटम. So it is directed towards the neck of archegonium. So this is the polarity in case of embryo development in case of Equisetum. Next, जो Equisetum इसमें कोई भी सस्पेंसर नहीं बनता है. So no suspensor is formed in case of Equisetum. जो एपीबेसल हैं, हाइपोबेसल सेल्स हैं, they divides right angle to each other. वो फिर से डिवाइड करेंगे right angle to each other to form four celled stage, जिसको कहा जाता है quadrant stage. So this stage is established. Then the four-celled embryo undergoes subsequent division. इसमें फिर से divisions होते हैं, further divisions होते हैं, and the future shoot apex originate from the largest cell. जो largest cell है, division के बाद जो बचते हैं cells, जो largest cell है उससे बनेगा shoot initial. Shoot apex originate from the largest cell and leaf initials from the remaining cells. और इसके अलावा जो बचते हैं सेल वहाँ से leaves निकलेंगे. So leaf initials are formed. The remaining cells of one quadrant of the epibasal hemisphere. So जो है epibasal hemisphere है उसके ये cells इस तरह से division of labor show करते हैं. Means जो largest cell है वो shoot बनाएगा, shoot initial बनाएगा. Remaining cells leaf primodia बनाएंगे. Next, one cell of epibasal quadrant. जो epibasal quadrant है वहाँ से एक सेल और a portion adjacent quadrant of hypobasal region, जो hypobasal region का एक portion है, ये दोनों contribute करते हैं for the development of root in case of sporophyte of Equisetum. So one cell of epibasal quadrant and a portion of hypobasal region quadrant, ये दोनों contribute करते हैं for the development of root in case of sporophyte, young sporophyte of Equisetum. So this diagram shows जो एपीबेसल सेल है उसका एक सेल और जो एक पोर्शन है हाइपोबेसल क्वाड्रेट का, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट इन केस ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ Equisetum. So the first root dwells from one epibasal quadrants and a portion of adjacent hypobasal quadrant that we have already discussed. The shoot grows rapidly. जो shoot है वो fastly grow करता है, that we can see in this diagram. Fast grow करता है shoot. Later the root grows directly downwards. और जो roots हैं later they will grow downwards and penetrate the gametophytic tissue. और वे penetrate करते हैं gametophytic tissue में to reach the soil और substratum. और बाद में ये soil के surface के अंदर penetrate कर जाते हैं roots. A number of such sporophyte may develop from a large mature gametophyte. एक ही gametophyte से बहुत सारे sporophyte बन सकते हैं if more than one egg is fertilized. अगर एक से ज़्यादा egg same gametophyte में fertilize होता है तो. So this is the photograph under microscope which shows this
development of sporophyte. So this upper portion is the sporophyte और ये है प्रोथैलस विच इज़ द गैमेटोफाइट. एक ही गैमेटोफाइट से बहुत सारे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडीज निकलती हैं अगर साइमल्टेनियसली इस प्रोथैलस के एक से ज़्यादा एग्स को फर्टिलाइज करते हैं एंथीरोजॉइड. सो मोर देन one sporophyte is formed from a single prothallus. So this was all about the embryonic development in case of Equisetum. Next comes the life cycle of Equisetum. As we have earlier discussed, जो mature plant body है Equisetum की that is sporophytic, sporophyte है ये, और ये डिफ्रेंशिएट होती है एरियल पार्ट्स में, एरियल ब्रांचेस में, और एक अंडरग्राउंड पार्ट जिसको कहा जाता है राइजोम. और ये रिप्रोड्यूस करता है बाय मींस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ये ट्यूबर्स विच आर अंडरग्राउंड जो राइजोम के नोड्स में प्रेजेंट होते हैं. ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट होते हैं एंड दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. वाइल जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, और जो स्पोर्स हैं दे आर फॉर्म्ड ऑन स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं दिस कोन लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कहा जाता है स्ट्रोबिलस. सो ये स्ट्रोबिलस में प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजियोफोर्स, और स्पोरेंजियोफोर्स में प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स. इक्विसेटम इज अ होमोस्पोरस फर्न, टेरिडोफाइट है ये. होमोस्पोरस मीन्स एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है. सो दीज स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया, और जो स्पोर की आउटर वॉल है दैट इज एपिस्पोर, उसके ब्रेकडाउन से बनते हैं इलेटर्स, और ये इलेटर्स हेल्प करते हैं डेहिसेंस ऑफ द स्पोरेंजिया एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स. स्पोर्स जैसे ही स्पोरेंजिया से रिलीज होते हैं दे आर डिस्पर्स्ड बाय दीज इलेटर्स, और ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट शो करते हैं. देन दे फॉल ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम, वहाँ पे ये जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म द गैमेटोफाइट जिसे कहा जाता है प्रोथैलस. दैट इज प्रोथैलस इन केस ऑफ टेरिडोफाइट. एंड दिस प्रोथैलस इज मोनोशियस. इट मीन्स इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंथ्रेडिया हैं वो बनते हैं, और आर्किगोनिया बनते हैं विच आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. जो एंथ्रेडिया हैं दे विल प्रोड्यूस द एंथीरोजॉइड्स विच आर मोटाइल स्ट्रक्चर्स, और इनमें बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं. दे आर अप्रॉक्सीमेटली 120 फ्लैजेला विच आर प्रेजेंट इन वन एंथीरोजॉइड जो बनते हैं एंथ्रेडिया के अंदर. देन कम्स the archegonium. Archegonia consists of neck canal cell, ventral canal cell and an egg cell. So base में present होता है egg. So antherozoid water की help से swim करते हैं and they reach up to the neck of archegonia. वहाँ पे जो neck canal cell है और ventral canal cell है वो disintegrate हो जाते हैं, और एक passage बनता है for the entry of antherozoid. एक antherozoid fuse होता है with the egg of archegonia and they show the process of fertilization. As a result of fertilization, they will form the diploid zygote, and this is the first cell of sporophytic generation. और जो zygote है ये develop करता है to form embryo that we have already discussed how embryo is developed into the mature sporophyte. और जो embryo है वो develop करेगा to form mature sporophyte. एक ही gametophyte पे एक से ज़्यादा sporophyte बन सकते हैं simultaneously अगर एक से ज़्यादा eggs fertilize होते हैं एक ही prothallus के. So this is all about the life cycle of Equisetum. This was all about the remaining portion of Equisetum that we have discussed the reproduction and life cycle of Equisetum. Hope you will get some idea from this presentation. Thank you for watching. Stay safe. Have a great day. Thank you.